In the last class, we have just started chemical bonding. I given some introduction of chemical bonding, that Lewis concept. Lewis concept में क्या था कि that is focusing on the completing of octet of all the atoms by electron sharing. Actually, that is we are already starting here a topic called we can say covalent bonding, and in that we have taken different theories of covalent bonding. In that first theory was taken was Lewis concept theory, Lewis concept और Lewis octet theory. तो हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग continuation. So in chemical bonding, the next point we can consider or we can start or continue will be your Lewis octet theory. That says that in the molecules which are having covalent bond in the atoms, they will try to have complete octet, or for hydrogen they try to have complete duplet. Means क्या होता है, the element try to acquire noble gas arrangement, noble gas type arrangement for the atoms. For acquiring noble gas arrangement of the atoms, they can share one electron, two electrons or more electrons with the surrounding atoms. So just like an example, like fluorine can share one electron with second atom fluorine, oxygen can share two electrons, N can share three electrons. वो सिंपल केसेस थे कि जहाँ पर हमने एटम को पुट करते हैं एज ए डॉट एंड वी राइट द रिमेनिंग एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम एंड देन वी कैन राइट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन. बट सपोज समटाइम वी हैव बिट कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स, लाइक अगर आपको एग्जांपल दिया है, आयन दिया है कार्बोनेट, आपको इसमें निकालना है, इसका बनाना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो वी कैन ट्राई टू गो फॉर सिस्टमेटिक अप्रोच. फॉर डूइंग और गोइंग फॉर सिस्टमेटिक अप्रोच, आई विल टेल वन मेथड विच इज हेल्पफुल टू यू इन सच केसेस. जिसे आपका इसमें क्या होता है, वी विल फाइंड फोर हाइपोथेटिकल नंबर्स. क्या क्या नंबर होते हैं आपका? एक नंबर आएगा n1. n1 क्या होता है? इट इज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एटम्स, प्लस इफ यू हैव आयंस तो ऐड नेगेटिव चार्ज फॉर अनायंस और सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज, सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज. ये क्या आपको देगा? n का वैल्यू, n1 का वैल्यू. n2 क्या होता है? n2 आपका होगा 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्लस 8 इंटू नंबर ऑफ अदर एटम्स, नंबर ऑफ अदर एटम्स. n3 क्या होगा? देखो बेसिकली n1 क्या सिग्निफाई करता है? N1 basically give total number of electron available. It gives total number of electron available. It gives total number of electrons available from all atoms. N2 क्या देता है? It gives number of electrons that should be there. That should be there. That should be there if there is no need of bonding. There is no need of bonding. तो N2 मिलता है. N3 क्या होता है? N3 आपका नंबर निकालेंगे थर्ड, यहाँ पे ये होता है डिफरेंस. इट इज N2 माइनस N1, और यहाँ से क्या मिलता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, दैट इज N3 अपॉन 2. N3 क्या बताता है? N3 gives number of electrons shared और number of bonding electrons, means shared electrons, shared electrons. और N4 क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. ये होगा N1 माइनस N3. यहां से निकालते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर्स. नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितना आएगा? नंबर ऑफ लोन पेयर्स इट इज N4 अपॉन 2. ये N4 क्या सिग्निफाई करता है? N4 सिग्निफाई नंबर ऑफ नॉन
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। N4 क्या होता है? N4 सिग्निफाइड नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, so we can first find the value of N1, N2, N3, N4. Let us apply this example here. Okay, how in carbon atom we can find all the values. Will you try to calculate yourself this value of N1, N2, N3, N4? देखो यहाँ पे क्या होता है कि N1 क्या है? Total number of electrons of all the atoms which are available to us. How to find total number of valence electrons? यहाँ पर हम काउंट करते हैं only valence electrons. Electron in the outermost shell, we call them valence electrons of all the atoms. Plus अगर आपके anions होते हैं तो क्या होता है? anion का मीनिंग कहते हैं extra minus charge में है extra electron तो add negative charge. In cation subtract positive charge. That can give the value of N1 first. फिर N2 क्या होता है? अगर हमारा हाइड्रोजन have complete duplet and other atom have complete octet तो क्या होगा? There no need of bond formation. तो N2 क्या देता है? Number of electron that should be available if there is no need of bond formation. That should be available or that should be there if there is no need of bond formation or bonding. तो N3 क्या होगा? Difference. इतना होना चाहिए, इतना है. तो जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है वो क्या होते हैं? They are the shared electrons और bonding electrons. तो N2 minus N1 क्या देगा? Number of bonding electrons. N3 और ये क्या देगा? Bonding electron by 2 करने से क्या मिलता है? Number of bonds, because in one bond formation consume 2 electrons. फिर क्या होता है? N4 क्या होगा? N1 जो हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था N1, N3 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए कहाँ पर? बॉन्डिंग में. तो जो बचेगा वो होगा N4. Difference of N1 minus N3. They are the non-bonding electrons and they form lone pairs. Lone pair कहाँ पे होंगे? On the other atoms, including central atom also. So that we are placing so that atoms can have complete octet. Got it? Can you find for this iron carbonate all the values N1, N2, N3, N4? पहले लिख लो, आराम से लिख लो, जल्दबाजी नहीं है. Write properly. If any point is not clear, you can ask. Sir, N3 क्या होता है? N3 है number of bonding electrons और shared electrons. देखो N1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, इतना अवेलेबल है, इतना होना चाहिए था. तो जो डिफरेंस होता है वो क्या होते हैं? They are the electrons shared mutually among the atoms. So that is called N3, number of bonding electrons or shared electrons. Got it? हाँ sir. Can you find the value of N1 and सर बस N2 को समझा सकते हैं. N2 होता है कि मान लो HR. हाँ, H एटम क्या होता है? देखो अगर हमारे जो एटम होते हैं इनमें बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट ना पड़े तो क्या होता है? तो क्या कब रिक्वायरमेंट नहीं होती है? इफ एटम हैव कंप्लीट डुप्लेट फॉर हाइड्रोजन टू बी नोबल गैस देयर शुड हैव 2 इलेक्ट्रॉन. जो और एटम होते हैं देयर शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स. देन देयर इज नो नीड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन. ओके, इसे आपको ओके आई विल एक्सप्लेन टू यू. लाइक इन कार्बोनेटाइन व्हाट इज N1 वैल्यू? 24. One atom carbon have 4 electrons outermost shell, 3 atom oxygen, so 3 into 6 per atom oxygen, 6 electron in valence shell. Add minus charge, become 24. N2 क्या होगा? 2 into number of H, 0 है, no hydrogen, light 0. 8 into how many atom are more there? All total 4 है, तो 32 हो जाता है. Leave H, H तो है नहीं इसमें, तो कितना होगा? 4 atom into 8, 32 हुआ. मींस अगर एटम को जितने एटम्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट नहीं है बॉन्डिंग के लिए तो दे शुड हैव 32 इलेक्ट्रॉन्स, तभी बॉन्ड बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. बट एक्चुअल में कम है तो जो डिफरेंस होता है N3 वो देगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. कितना आएगा? 32 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 8. सो व्हाट वी कैन गेट? नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4. देन व्हाट इज N4? 24 इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन हैव बीन यूज्ड इन बॉन्डिंग. That means 24 minus 8 become 16. They are non-bonding electrons. So what we can have? Number of lone pairs. 16 by 2 करने से आएगा 8. Got it? बाकी बच्चे इसमें डाउट तो नहीं है? नहीं सर. ये वो सिंपल मेथड होता है, इससे कुछ आपको और भी आइडिया मिलता है स्ट्रक्चर में. एक भी पढ़ाएंगे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन आता है, ये सब आपको एक बेसिक्स है बॉन्डिंग के.
इतना हो गया, मैं इसको मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है लिखने के लिए। नहीं सर एक सर अगर 2 प्लस होता देन -2 करता। हाँ, -2 करेंगे, प्लस का भी नहीं, क्या इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। इफ यू हैव कटायन दैट मींस दे हैव लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट मींस वी हैव टू सबट्रैक्ट द प्लस चार्ज। लिखा था ना कैलकुलेशन में, अगर अनायन होता है तो ऐड नेगेटिव चार्ज, इफ यू हैव कटायन देन सबट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज, देन वी गेट द n1 वैल्यू। ठीक है ना। लिखा पूरा, ये इस साइड लिखा पूरा, स्टार्ट का पोर्शन लेफ्ट साइड का। हाँ सर लेफ्ट कर चलिए, तो इसमें अगर हमने ये निकाल दिया पूरा, तो अगला आता है पॉइंट सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम। इतना निकाला हमने कि इसमें हमें क्या आइडिया मिला कि इस आयन के अंदर 4 बॉन्ड्स हैं, दिस आयन हैव 4 बॉन्ड्स एंड इट हैव गॉट टोटल 8 लोन पेयर्स। तो देन हाउ टू प्लेस एटम्स, तो इसमें क्या होता है, अगला पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम, व्हिच एटम कैन बी टेकन एज सेंट्रल एटम। तो सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम, व्हिच एटम कैन बी टेकन सेंट्रल एटम, तो एटम्स लेस इन नंबर, एटम्स less in number to be taken as central atom, or we can take generally क्या होता है इसमें, atoms able to form more number of covalent bonds, more number of covalent bonds. This atom is generally less electronegative also, it is less electronegative atom in general, will be taken central atom. तो if you have ion is carbonate, can you tell in this ion carbonate which atom can be taken central atom? कार्बन लेंगे central atom यहाँ पे, तो कार्बन will be central atom. तो around carbon central atom we arrange remaining atoms. तो कितना atoms है? We have 3 atoms, right? 3 atoms. But we have how many bonds? We have total 4 bonds. That means one bond should be double bond. Atom 3 है, atoms 3 है surrounding में, बट कितना आपका दिया है, बॉन्ड्स 4 आ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, वन बॉन्ड शुड बी डबल बॉन्ड। आपके एटम 3 है बट बॉन्ड 4 आ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, वन बॉन्ड शुड बी डबल बॉन्ड, वन बॉन्ड शुड बी डबल बॉन्ड हो गया। अब आते हैं प्लेसिंग लोन पेयर्स। तो हाउ टू प्लेस लोन पेयर, वी विल प्लेस लोन पेयर ऑन एटम्स सो दैट दे कैन हैव कंप्लीट ऑक्टेट। दिस कार्बन हैव ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स, that means carbon have complete octet, it does not carry extra lone pair. This O have single bond means 2 electrons, so to have complete octet it carry 3 lone pairs, so this oxygen also will have 3 lone pairs to have complete octet. यहाँ पे कितना आएगा, ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, this means this O have already 4 bonds, that means this O will carry 2 lone pairs, है ना। 8 lone pair देखिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 plus 3 6 plus 2 8 lone pairs. We will place lone pair on different atoms so that different atom can have complete octet. Got it? इतना हो गया। अब आते हैं चार्ज। यहाँ पे चार्ज भी है साइन के ऊपर, तो चार्ज कैसे निकालते हैं, तो एक टर्म आती है यहाँ पर कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। वन टर्म इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। We will find formal charge for each atom. FC you can write here. We will calculate for each atom separately. तो हाउ टू फाइंड फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम्स, तो ये निकालते कैसे हैं, इसका रिलेशन क्या है, इट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम, माइनस करते हैं क्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम माइनस करेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग electrons, that can give the value of formal charge. Important point है, ध्यान रखिएगा, इसको आगे भी काम आएगा। How to find for atom formal charge? It is number of bonds, it means number of valence electron minus number of bonds plus, तो ये दोनों माइनस होंगे, दोनों ऐड कर लोगे, सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो प्लस नंबर ऑफ नॉन
bonding electrons. Let us say how to find for carbon formal charge. For carbon atom कितने का formal charge? F3 for formal charge. Carbon have 4 valence electrons. It have how many bonds? 4 bonds. How many electrons non-bonding? 0. So carbon have 0 formal charge. That means in this ion, carbon does not carry any charge. Then you take this oxygen atom. It have how much formal charge? O have valence shell 6 electrons. It have 1 bond minus. It have 6 electron non-bonding. That will be how much? -1. This O will have -1 formal charge. This O are identical. This O also have -1 formal charge. While this O will have how much formal charge? 0. आप देख सकते हैं. O have 6 electrons in valence shell minus number of bonds 2 plus 4 electron non-bonding. तो 6 minus 6 0 हो जाता है. This O have 0 formal charge. तो ये आपका हुआ उसका लोवेस्ट स्ट्रक्चर कि वी आर राइटिंग द फॉर्मल चार्ज एटम्स लोन पेयर. इसका मेन फोकस क्या होता है थ्योरी का कि वी हैव टू प्लेस एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन सच ए वे दैट एटम्स शुड हैव कंप्लीट ऑक्टेट. इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? पूछ लीजिए कोई पॉइंट पे. ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड में सिर्फ 4 एटम्स, 4 इलेक्ट्रॉन है नॉन बॉन्डिंग का, क्योंकि ऑलरेडी 2 बॉन्ड है. दैट मींस इट हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो वी प्लेस 2 लोन पेयर मोर बिकॉज देन दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट. हमारा एम क्या होता है, हम क्यों प्लेस करते हैं लोन पेयर्स को हैं आफ्टर राइटिंग बॉन्ड्स? इट इज दैट सो दैट द एटम्स कैन हैव कंप्लीट ऑक्टेट. गॉट इट? ओके, इफ आई टेक नेक्स्ट एग्जांपल. आपका can you explain the formal charge in that -1 the one on the head? तो ये फॉर्मूला है ना फॉर्मल चार्ज के लिए कि फॉर ऑक्सीजन एटम व्हाट इज फॉर्मल चार्ज दिस वन. देखो इसमें क्या है, O पर आपको क्या दिख रहा है? O का तो ये फिक्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है. Okay, sir. देन व्हाट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स? Bonds 1. And it has 6 electron non-bonding. Then this have -1 formal charge. What's the central atom of? हाँ, सेंट्रल एटम क्या होता है? देखो इसमें भी कैसे, हाउ टू फाइंड फॉर्मल चार्ज और डिसाइडिंग फॉर्मल फॉर सेंट्रल एटम. Central atom decider. सिंपल तरीका है हाउ टू डिसाइड सेंट्रल एटम. ये तरीका प्रोसीजर होता है कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा? एटम्स लेस इन नंबर कैन विल बी टेकन सेंट्रल एटम, और एटम्स एबल टू फॉर्म मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. दिस एटम इज जनरली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आल्सो, बट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज नॉट ऑलवेज द केस. मेन क्राइटेरिया होता है कि दिस एटम शुड बी एबल टू फॉर्म मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. द एटम व्हिच कैन फॉर्म मोर बॉन्ड्स विल बी टेकन एज सेंट्रल एटम. डेफिनेटली O कैन फॉर्म 2 बॉन्ड मैक्सिमम, कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड, और वैसे भी एक कार्बन है 3 ऑक्सीजन एटम होंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि अराउंड ऑक्सीजन एटम भी अरेंज रिमेनिंग एटम्स. तो ये पहला आपका ये पॉइंट होता है कि जिस एलिमेंट के एटम कम होते हैं उसको हम लेंगे सेंट्रल एटम में. दैट द बेस्ट वे. अगर कोई ऐसा होता है कि लगता नहीं कि मान लो 2 एटम दिख रहा है एक एलिमेंट के, तो हाउ टू डिसाइड? फिर ये सेकंड पॉइंट आते हैं, एटम्स विच एवर कैन फॉर्म more number of covalent bonds will be taken as central atom. Okay.
Now you try yourself. For example, nitritine. If I suppose take a nitritine, can you find this N1, N2, N3, N4 and drawing the structure? Try yourself. Nitritine. तो वो CO3 में डबल बॉन्ड एक में होगा, उसमें हमें पता कैसे चले? हमारे बॉन्ड 4 थे ना, एटम 3 थे सराउंडिंग में, बॉन्ड्स 4 थे तो एटम 3 था सराउंडिंग में, दैट मींस वन बॉन्ड शुड बी डबल बॉन्ड. ओके. तो क्वेश्चन क्या है? In for nitritine, draw this kind of Lewis dot structure after calculating N1, N2, N3, N4 all values. Sir, got the numbers. And can you draw the structure also? Try करो ना कोई लिखने का. Yes, sir. Draw the structure, write formal charges, write everything, whichever you can do. Done. चलिए आप लोग नंबर N1 को चेक कर लिया, बाकी इन्होंने निकाल दिया होगा. N1 कितना आएगा इसमें? देखो नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल, 2 आउटम ऑक्सीजन, ऐड माइनस चार्ज कितना हो जाएगा? 18. N2 कितना होगा? नो एटम हाइड्रोजन, 3 एटम ऑक्सीजन. N2 is 24 and 3 is 24 as well. N3 डिफरेंस ले लोगे 6, 6. बॉन्ड्स 3, N4 12 आ जाएगा. 18 माइनस 6 से 12 आएगा. लोन पेयर्स 6 हो जाएगा. यस. देन which atom to be taken central atom here? Nitrogen. Then place 2 atom oxygen, but we have 3 bonds, that means 1 bond to be double bond. Anyone? So that one has 2 lone pairs, nitrogen has 1 lone pair and the other one has 3 lone pairs. Yes. Total we have 6 lone pairs. So N will carry 1 lone pair to have complete octet. O will carry 3 lone pair, and this O will carry 2 lone pairs. And then writing formal charges for O and for N. What is formal charge? 5 minus number of bonds 3 minus 2 electron non-bonding 0. N does not have formal charge. Already told you कि इसमें कितना आएगा formal charge? 6 minus 1 bond plus 6 electron non-bonding -1. इसका 0 रहेगा, like already discuss. So in nitritine O will have -1 formal charge. सर हाँ. सर N2 तो 18 होगा ना? N2 18 था. सॉरी लिख दिया गलती से. बाकी लिखा अलग ठीक है कैलकुलेशन में. नहीं N2 तो
एक मिनट सॉरी गलती हुआ ना, मेरा गलती है, 8 होगा, 24 ही है। हाँ सर। और मैंने लॉन्ग लिखा था यहाँ पे, 24 है। और 3 into 6 लिख दिया, 3 into 8 होता। ओके, नेक्स्ट वन टेकन इज नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन। Next we take an ammonium ion NH4 plus. Next we take NO2 plus called nitronium ion. Okay, first we take nitrate ion. One at a time one लेते हैं. First we take nitrate ion. Find all the values N1, N2, N3 quickly. पहले एक करो ना, पहले हाँ, अगला है NH4 प्लस, अगला है NO2 प्लस, बट पहले ये करना है नाइट्रेट आयन। सर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है समझा? अरे इतने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे 18, ठीक है ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुआ 6, तो जो बचेगा वो होगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। N1 क्या है? मतलब 18 माइनस है। हाँ वही तो था नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी नॉन पेयर मतलब। हाँ लोन। N3 था नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, सीधे फर्स्ट फोटोग्राफ। N3 था नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो जो बचेगा वो होगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। 18 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, ये थे हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो बचेगा 12 इलेक्ट्रॉन विल बी नॉन बॉन्डिंग एंड दे विल फॉर्म लोन पेयर्स। अच्छा तो फिर वो ओके ठीक है सर। ओके तो इन नाइट्रेट आयन कितना निकाला हमने? निकाला सारा वैल्यूज। इन नाइट्रेट आयन व्हाट इज N1? 24 आएगा, 5 plus 3 into 6 plus add minus charge 24। N2 कितना आएगा? 2 into 0 plus 8 into 4 32। N3 कितना होगा डिफरेंस? 32 minus 24 is 8 bonds, 8 by 2 4। N4 कितना होगा? 24 minus 8 16। लोन पे आपका आएगा 16 by 2 8। Now which atom will be taken central atom here? Nitrogen. The bond diagram is the same as carbon. Carbonate. Charge only difference आपका आएगा थोड़ा सा। Yes, sir. हो गया। Then on finding formal charge of each atom, nitrogen have +1 formal charge, this 2O have negative charge, this O have zero charge। अभी भी चार्ज नेट नेगेटिव बनी है, +1 -1 तो कैंसिल हुआ, तो नेट चार्ज इज -1/8। तो ये आपका हुआ नाइट्रेट का स्ट्रक्चर, मतलब नाइट्रेट का इलोवेस स्ट्रक्चर। हो गया? कोई डाउट है पूछ सकते हैं आप लोग। अगला है आपका अमोनियम आयन के लिए, और अमोनियम आयन अब यहाँ पे कटन आ गया, तो फॉर अमोनियम आयन कैन यू फाइंड द वैल्यूज? Do at your own.
हमें फॉर्मल चार्ज भी निकालना है पिछले वाले का। हर एक का निकालना पड़ेगा फॉर्मल चार्ज। जब भी आयंस होते हैं तो आपको आयंस हो चाहे न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपको चार्ज देखना चाहिए। देखो यहाँ पर कितना है, नाइट्रोजन में कितना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 4 एटम हाइड्रोजन, पर एटम हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, सबट्रैक्ट प्लस चार्ज, तो यहाँ माइनस करोगे तो कितना होगा, ये आपका होगा 9 4 प्लस 5 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। व्हाट इज N2 वैल्यू फ्रॉम हियर, तो 16. 16, 2 एटम नाइट्रोजन तो 2 into 4, 2 into 4 number of hydrogen atom plus 1 nitrogen तो 1 into 8 become 16। What is N2 होगा 16, what is N3 difference, 16 minus 8 8 हो गया, number of bonds 8 by 2 4 हो गया, number of non bond इम्प्रूव कितना हुआ, N minus 0 हो जाएगा, no that means no lone pair। तो when you take ammonium ion, nitrogen center atom 4 bonds, all 4 bonds with hydrogen atoms only, then N have plus 1 formal charge, you can do calculation, no atom no lone pair। सर नंबर ऑफ एटम्स NH4 में तो 5 होगा ना, कौन सा एटम्स, N2 वाला, N2 का फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला, 2 into number of hydrogen atom plus 8 into number of other atoms, H को छोड़ के, H को काउंट नहीं करना होता है इसमें, 1 atom नाइट्रोजन 4 atom हाइड्रोजन, see the formula again once again। लिख दिया, नहीं सर। तो फॉर्मल चार्ज में अभी भी डाउट है सर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिर वो हर एक इसका डिफरेंट कैसे होगा, उसका तो N1 माइनस N3 है ना। इट इज नॉट फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज अलग निकालते हैं, पहले सब कुछ कर देते हैं, लास्ट में आता है फॉर्मल चार्ज पे है। हाँ सर, लेकिन उसमें उसका जो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो कैसे लेंगे, किसका निकालना था मुझे, अच्छा इसमें डाउट है, तो जैसे आपने NO2 का निकाला था। हाँ किसी का निकालो ना आप, जिसका बोलोगे आई विल एक्सप्लेन टू यू। इसमें किसका डाउट आपका बताओ, फॉर्मल चार्ज निकालने में NO3 माइनस में किसका एटम का, N का कि O का, ये निकालते हैं हर एक एटम का सेपरेटली। क्या लिखा है मैंने, वी विल फाइंड फॉर्मल चार्ज फॉर ईच एटम सेपरेटली, नॉट ऑफ द आयन एज ए होल। किसका डाउट है बताओ ना मुझे। इस O में आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कैलकुलेशन, इस O का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना इसका बॉन्ड दिख रहा है, दिख रहा है सामने कि नहीं दिख रहा है, 1 है कि नहीं इसका बॉन्ड, कितना इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग है, 6 है कि नहीं इसमें, तो नेगेटिव 1 होगा। इस O पे कितना है, 6 माइनस 2 बॉन्ड इसका प्लस 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग है तो 0 होगा, 0 लिखते नहीं है। इस एंड पे क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल माइनस 4 बॉन्ड्स, 0 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, 0 हुआ, दैट इज इट है प्लस 1 फॉर्मल चार्ज। ये और इस O का तरीका एक होता है कैलकुलेशन करने का। डाउट किसमें है, तो फिर आयंस का सर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैसे एलिमेंट का नॉर्मल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कर एटम का ही लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आयंस का नहीं है, ये होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स। हमको जिस एटम का निकालना है उस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। ठीक है।
जिस भी एटम का हमको निकालना है फॉर्मूला उसका लेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसी का देखते हैं बॉन्ड आफ्टर डूइंग दिस अप्रोच, इन दिस अप्रोच दैट्स NH4 प्लस। नाउ वी कैन टेक नेक्स्ट वन NO2 प्लस। तो NO2 प्लस कितना होगा, N1 N2 सारा निकाला आपने। इन NO2 प्लस क्या होगा, N1 का वैल्यू, नाइट्रोजन है 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल प्लस 2 एटम ऑक्सीजन, -1 करोगे, सब्ट्रैक्ट प्लस चार्ज कितना आएगा, ये 5 12 16 रहेगा। N2 कितना होगा, 2 into 0 फॉर हाइड्रोजन, 8 into 3 एटम्स 24 हो जाएगा। N3 कितना होगा, 24 -16 8 हो गया। बॉन्ड्स 4 हो जाएगा इसमें। N4 कितना होगा, 16 -8 8, तो लॉन पे कितना आएगा इसमें, 8/2 4 हो जाता है। कोई डाउट? Then nitrogen to be taken central atom, 4 bond means we have both double bonds. Now place lone pair on atoms to have complete octet. This O will have 0 charge, this N have only +1 formal charge. हो गया। हो गया। आपको मैं और क्वेश्चन निकाल रहा हूँ इस पॉइंट पे, कि इस थ्योरी का बहुत यूज नहीं है। आपको इस थ्योरी को मैंने थोड़ा प्रैक्टिस दी थी फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज एंड फॉर स्पेशली कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम्स, स्पेशली व्हेन वी टेक रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, तो वहां पर ये पॉइंट यूज पड़ता है कि रेजोनेंस में एटम पे चार्ज कैसे निकालते हैं, विच एटम विल हैव प्लस और चार्ज और माइनस चार्ज, तो उसी के लिए आपको ये बताया था। अब आते हैं इस थ्योरी का ड्रॉबैक क्या क्या है, थ्योरी के लिमिटेशंस क्या क्या हैं। For this theory, what we can have limitations, you can see here, or drawbacks. देखिए इसमें क्या होता है, this theory give too much stress। यार अपना माइक्रोफोन ऑफ रखो बच्चे लोग, only when you speak out then you can switch on the microphone। तो पहला क्या था लिमिटेशन, आपको बोल दे रहा हूँ लिख लीजिए, इतना सब कुछ लिखने आपको पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लिखिए। देखो this theory give too much stress, write down, this theory give too much stress on completion of octet of all the atoms, H को छोड़ के obviously, completion of all the atoms, so it is not applicable for molecules, not applicable to molecules having less than 8 electrons or more than 8 electrons on center atom, having less than 8 electrons on less than 8 electrons or more than 8 electrons on central atom। एग्जाम्पल क्या आता है लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, BeCl2, BF3, BCl3 टाइप एग्जांपल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम हाइपोवैलेंट स्पीसीज, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। क्या होता है हाइपोवैलेंट का, व्हेन सेंट्रल एटम हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्या हुआ सेंट्रल एटम हैव, ऑलरेडी पॉइंट बोला हुआ मैंने आपको, व्हेन दे हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन वी कॉल देम हाइपोवैलेंट।
हाइपरवैलेंट का मीनिंग क्या मींस दे विल हैव लाइक एग्जांपल PCl5 SF4 SF4 SF6 IF7। यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल एटम हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, वी कॉल देम हाइपरवैलेंट स्पीसीज। हाइपरवैलेंट स्पीसीज इवन सेंट्रल एटम हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, वी कॉल देम हाइपोवैलेंट स्पीसीज। क्वेश्चन यहाँ में पूछ लेता है इन द फॉलोइंग विच आर हाइपोवैलेंट विच आर हाइपरवैलेंट स्पीसीज, तो आपका ये पॉइंट काम आएगा उस केस में। तो एक तो ये हुआ उसका लिमिटेशन। अगला होता है पॉइंट, इट इज नॉट all atoms except for hydrogen, आपने तो वो हाँ हाइड्रोजन छोड़ के, एच का तो कंप्लीट डॉक्टर का मीनिंग नहीं ना इसमें, ये तो कॉमन सेंस है, उसका लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। हाइड्रोजन तो एक ही शेल होता है इसमें। फिर अगला पॉइंट आएगा नॉट वैलिड, दिस थ्योरी इज नॉट वैलिड फॉर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। When suppose आप इसका मीनिंग क्या होता है, N1 आपका ऑड नंबर होगा, if N1 is odd number तो we can't apply this theory। एग्जांपल देखो कैसा आता है, NO मॉलिक्यूल, NO2 मॉलिक्यूल, ClO2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या होता है, we have total number of valence electron will be odd number, तो for them this theory is not applicable, क्योंकि यहाँ पे क्या है, N1 is odd number, तो we have to forget about completion of octet। लोन करी नहीं होते, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है अनपेयर टाइप का। और क्या होता है, दिस थ्योरी इट डज नॉट विद द शेप, डज नॉट डिस्क्राइब द शेप, डिस्क्राइब द शेप। जस्ट हम प्लेस करते हैं कि लोन पेयर प्लेस कर दिया, प्लेस बॉन्ड पेयर, बट शेप क्या होगा, शेप के बारे में थ्योरी कुछ डिस्क्राइब नहीं करती है। तो इसके मेन कुछ लिमिटेशंस है इस थ्योरी के। इस थ्योरी में क्वेश्चन रेयरली आता है, बट थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। स्टार्टिंग थ्योरी ऐसे करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का, कोवलेंट बॉन्डिंग का थ्योरी में पहला यही होता है कि दिस थ्योरी सेज कि एटम और एलिमेंट शुड रिजेंबल नोबल गैसेस। सो इन लाइक इन नोबल गैसेस वी आर हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम्स, और वी हैव वन हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हेन द एटम्स can have completion of octet by sharing of electrons, they can share one or more electrons with other atoms so that they try to have complete octet of all the atoms। तो उसके बारे में थ्योरी का स्ट्रेस था। दिस थ्योरी says too much that कि molecules in which central atom do not have complete octet, they should not exist at all, but we have many molecules which are existing and which are having less than 8 electrons in some cases or more than 8 electrons in some other cases। We can call them hypervalent species, they are quite well known compounds। Also the molecules in which we have odd electron number, they are also existing and quite stable। हाँ reactivity vary कर सकता है, but they are existing। तो ये आपका थ्योरी का मेन ड्रॉबैक था। NO2 में तो NO2 में कैसा होगा, N1 आपका ऑड नंबर होगा, देख लीजिए हाउ टू प्लेस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, आएगा नहीं इसमें। We have taken NO2 has no charge। no neutral molecule ना, not I have given the example NO2 minus, I have taken example NO2 plus but not NO2 molecule। इसके लिए we can use the other theories, but ऐसा नहीं कि शेप को डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है, होता है शेप को डिस्क्राइब करते हैं। रेजोनेंस का चीज में आता है कंसेप्ट है टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा एक थ्योरी खत्म होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि शेप वगैरह का आइडिया मिलता नहीं, बॉन्ड एंगल का आइडिया नहीं मिलता थ्योरी से। तो अब हम अगला थ्योरी यहाँ पे लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज VSEPR थ्योरी। इसका मीनिंग क्या होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये फुल फॉर्म है VSEPR का, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। V वैलेंस शेल, E इलेक्ट्रॉन, P पेयर, R रिपल्सन थ्योरी।
दिस थ्योरी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इससे आपको शेप का आइडिया मिलता है। क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, फाइंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड, द बॉन्ड एंगल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके बारे में आइडिया मिलता है आपको इस थ्योरी की हेल्प से। ठीक, तो थ्योरी क्या होता है थोड़ा लिख लेते हैं थ्योरी के बारे में। देखो एज पर दिस थ्योरी क्या बोलते हैं, देखो एज पर दिस थ्योरी सेंट्रल एटम कैन हैव बॉन्ड पेयर्स, ये तो होते ही बॉन्ड तो होंगे प्लस एंड कैन ऑल्सो हैव can have lone pairs as well. Lone pairs may or may not be there. Lone pairs also can have lone pairs. In any case, मैं बोल रहा हूँ, लिखते रहिए। In any case, electrons carry negative charge, so they repel each other, full stop। क्या हो गया, इतना स्लो तो बोला था यार मैंने, क्या पॉइंट छूट गया? स्टार्टिंग यहीं से है, सेंट्रल एटम कैन हैव लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स। इन एनी केस इलेक्ट्रॉन्स हैव negative charge, so they repel each other. Then to acquire maximum stability, to acquire maximum stability, we place lone pairs and bond pairs in such a manner so that they have maximum bond angles and least repulsions, ठीक। फर्दर क्या होता है, अराउंड सेंट्रल एटम वी कैन हैव अराउंड सेंट्रल एटम the lone pair occupy more space as it is attracted by nucleus of single atom, then bond pair which is attracted by nuclei of two atoms, so that two atoms and bond pair occupy then less space around central atom, less space and cause less repulsion। एक्चुअली होता क्या है, सेंट्रल एटम के चारों तरफ वी कैन हैव इलेक्ट्रॉन्स इन टू टाइप्स। इफ यू टेक एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल, इन वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या होता है, दो होंगे बॉन्ड पेयर्स एंड इट हैव two lone pairs, so they have three kind of repulsions possible,
एक होता है लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्सन इसे होता है लोन पेयर रिपल्सन। एक होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन व्हेन रिपेल वी कॉल देम बॉन्ड पेयर रिपल्सन। और एक थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो वी हैव थ्री काइंड ऑफ रिपल्सन्स, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और ये होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। सो वी हैव थ्री काइंड ऑफ रिपल्सन्स। इनका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन क्या होता है, लोन पेयर विल कॉज मोर रिपल्सन ओवरऑल देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। Around central atom we have electrons in these categories and they will have this order of repulsion. इसका रीजन आपको ऑलरेडी यहाँ लिखा दिया मैंने कि होता क्या है, अराउंड सेंट्रल एटम क्या है, लोन पेयर विल हैव अट्रैक्शन सिंगल न्यूक्लियस, ओनली ऑक्सीजन अट्रैक्ट लोन पेयर, बट यहाँ पे क्या है बॉन्ड पेयर अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर हैव अट्रैक्शन टू एटम न्यूक्लियस। तो क्या होता है बॉन्ड पेयर ऑक्यूपाई लेस स्पेस, देन लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस ऑन सेंट्रल एटम, तो दे विल कॉज लोन पेयर विल कॉज मोर रिपल्सन। तो ओवरऑल रिपल्सन का ऑर्डर क्या होता है, एलपी रिपल्सन मैक्सिमम, फिर होता है एलपी बॉन्ड पेयर रिपल्सन, सबसे कम होता है रिपल्सन ऑफ बॉन्ड पेयर। लिखा पूरा? Yes, sir. Sir, how does nucleus attraction cause exchange the amount of space? Have you written this part completely? Sir, not around that. फर्स्ट कंप्लीट आई एक्सप्लेन टू यू बिकॉज मैं डायग्राम को बना के दिखा दूंगा फिर से एक बार। लिख लो पूरा, आई एक्सप्लेन टू, डोंट वरी, आई एक्सप्लेन विद वन मोर डायग्राम, तो थोड़ा सा आपको देखना इजी होगा उसमें। ये होगा पूरा डायग्राम लिखा थ्योरी पार्ट पूरा इसका Yes, sir. सबका हो गया। चलिए अभी लिखा है फिर सीधा नोट्स फोटोज। देखो होता क्या है, अराउंड सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, मैं लिखा ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है, तो ऊपर आपका जो लोन पेयर होते हैं दे विल हैव अट्रैक्शन विद सिंगल न्यूक्लियस। मीनिंग क्या होता है, द टू लोन पेयर विल ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई स्फेरिकल स्पेस। ये आपका होंगे लोन पेयर्स। और क्या होता है बॉन्ड पेयर, क्या होता है जो लोब्स व्हिच कंटेन बॉन्ड पेयर दे विल हैव सम इलोंगेशन। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे क्या जो आपका लोन पेयर होता है इसका अट्रैक्शन होता है सिंगल एटम्स न्यूक्लियस, तो दे ऑलमोस्ट हैव स्फेरिकल स्पेस व्हिच कंटेन लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम्स। बट यहाँ पर क्या है, द बॉन्ड पेयर द ऑर्बिटल व्हिच कंटेन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स they have some elongation because this bond pair will have attachment to atom nucleus. So lobes are not spherical but they get elongated. By elongation of the lobes around central atom they will occupy less space.
That the meaning is around central atom bond pair occupy less space because they have the orbitals or the lobes which contain bond pair will have elongation because of attraction by two atoms nucleus simultaneously, whereas the lone pair electron cloud have attraction by single atom nucleus, so they almost have spherical space around central atom. That's the reason you can see that lone pair occupy more space around central atom than bond pair. When they occupy more space, so they definitely will cause more repulsion, and then this will be lowest repulsions, and this repulsion order will be intermediate of two repulsions order. Are you clear now? Yes, sir. तो you can try to understand that way. जो आपको लिखाया था पूरी कहानी उसका ये मीनिंग था कि lobes which contain bonding electron pair they undergo elongation because they have attraction by two atoms nuclei simultaneously, whereas lone pair electrons have attraction by single atom nucleus, so they almost occupy spherical space around central atom. Got it? तो ये तो हुआ इसका अरेंजमेंट का जो है कहानी. अब आते हैं इसमें कि शेप निकालते कैसे इस थ्योरी की हेल्प से. थ्योरी बोलते सिंपल एक पॉइंट बोलता है थ्योरी के अंदर कि वी विल प्लेस लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इन दैट पोजीशंस इन विच दे हैव ओवरऑल रिपल्सन लोएस्ट, एंड व्हेन दे हैव ओवरऑल रिपल्सन लोएस्ट, व्हेन दे हैव बॉन्ड एंगल मैक्सिमम, व्हेन द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम, देन दे हैव ओवरऑल रिपल्सन्स लीस्ट. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अरे कुछ बोलो यार. हाँ ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The bond angle, like, will change the distance. बताते हैं. बॉन्ड एंगल मींस जो अभी बताते हैं कि आप थोड़ा वेट करो इसके लिए. शेप के ऊपर दैट विल डिपेंड ऑन शेप्स बॉन्ड एंगल्स. तो इसमें हाउ टू गेट द शेप्स और बॉन्ड एंगल ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग दिस थ्योरी. तो इसमें एक मेथड होता है. वी कैन टेक मेथड कैन बी कॉल्ड n/2 मेथड्स. तो वी फर्स्ट फाइंड द n/2 वैल्यू. तो फर्स्ट फाइंड द n वैल्यू. n कैसे निकालते हैं? फर्स्ट फाइंड n. n होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ अदर एटम्स. इफ यू हैव अनायंस तो क्या करते हैं? ऐड नेगेटिव चार्ज फॉर अनायंस and cations, subtract positive charge. That can be the value of n, and then we find n/2 value. जो n/2 का होता है, it is number of bond pairs plus number of lone pairs on central atom. On central atom. फिर एक आता है टर्म्स के बाद में what is number of bond pair and lone pair, how to decide. So number of bond pairs will be same as number of other atoms, and what is number of lone pairs? जो difference रहेगा इसमें n/2 माइनस कर दोगे number of bond pairs. दिया. Number of BPS same as number of atoms. Number of other atoms leaving central atom. बता रहा हूँ ना कैसे निकालते हैं इसको. पहले लिख लो एक बार पूरा. I'll explain how to find NP LP bond PP with examples.
नाउ वी विल मेक वन टेबल, यू टेक वन फुल पेज फॉर टेबल, कंजूसी नहीं करना, आपका हाफ पेज बच गया उसको आप बाद में यूज कर लेंगे, अभी यूज कर लेंगे और पेज लिखने के लिए, बट फॉर टेबल यू टेक वन फुल पेज and try to take right page if possible. One full page we will take for table, we will actually 19 column will be there, so you will take one page for only table part जो लिखने का part है, drawing you can write separately, आपका space बचा लिख सकते हैं, but for table take one full page. क्या लिखेंगे table के अंदर लिखेंगे, we find value of n by 2 for the table, Sir, vertical or horizontal? you take vertical, ले सकते हैं आराम से, बहुत छोटा, you find n by 2 value, then bond pairs ये खाली नंबर होगा, लोन पेयर्स या स्मॉल कॉलम, जस्ट राइट 1 2 3 4 5 6 आएगा, 7 तक मैक्सिमम, फिर यहाँ पे आएगा एक आता कॉलम है ज्योमेट्री, वन टर्म इज टेकन ज्योमेट्री और इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेक्टेड शेप, फिर आता है एक्चुअल शेप, that is called shape of molecule, फिर यहाँ पे bond angles, और यहाँ पे examples. in table आपके ये दो कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना, बाकी तो नंबर लिखना खाली है, एंगल आपका होता है मैक्सिमम एंगल इन 3 डिजिट्स 180 डिग्री, ये आपका दो कॉलम बड़ा बनाना है, if you want to draw a vertical table, ये खाली नंबर लिखेगा आपको 7 तो सिंगल डिजिट, तो write these 3 columns very small, these 2 columns slightly bigger, again N by 2 is the first column. क्या हुआ, Sir, N by 2 is the first column. yes n by 2, BP means bond pair, LP lone pair means number of lone pair, bond pair, ज्योमेट्री और एक्सपेक्टेड शेप, एक्चुअल शेप, बॉन्ड एंगल, एग्जांपल्स. Sir, after making table, नाउ विल स्टार्ट, पूरा हो गया सबका, बच्चे लोग टेबल सबका पूरा हुआ हैं, नहीं सर नहीं किया। तो जल्दी करो. Okay, now starting. तो हाउ टू अप्लाई द टेबल मीन्स टेबल में खाली लिखोगे उतना इन्फॉर्मेशन जितना मैं लिखूंगा, जो बचा स्पेस आपका था पिछला पेज रह गया होगा, हाफ पेज रह गया होगा, वहां पे जो बाकी लिखने का काम है, ड्रॉ करने का काम है, यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर. टेबल यू टेक वन फुल पेज फॉर टेबल बिकॉज वी हैव 19 कॉलम्स, तो एक पूरा पेज आपका जाएगा इसमें, यहाँ पे समरी हो जाएगा पूरा, डिफरेंट ज्योमेट्री का, शेप का, वी विल हैव समरी एंड बॉन्ड एंगल का समरी आपको मिल जाएगा पूरा एक बार में ही इन वन फुल पेज. यस, so how many rows? we will have 19 rows, around 19 के 17 ऐसा कुछ आएगा आपका.
but full page you can keep. Don't write right now. Don't draw the rows. Will come automatically. You can keep on drawing. Write comfortably. कोई problem नहीं है. ज़्यादा लगता है तो can take one page extra one page. अगर लगता है यार writing very openly बड़ा लिखते हो तो उस केस में. Let's apply now. तो first example can be taken BeCl2 molecule. In BeCl2 molecule, which atom is central atom? Baridium obviously. Atom less in number to be taken central atom. So what is n/2 for this molecule? In baridium in outermost shell we have 2 electrons. याद है कि नहीं? Group 2 element होते हैं. In second group element 2 electrons in valence shell. Plus क्या होगा? Number of other atoms. Number of valence electrons of central atom plus number of surrounding atoms. तो 2 atoms surrounding में है. By 2 कितना हो जाएगा? 2n/2 का value. How many bond pairs? जितना atom होगा उतना bond pairs. तो कितना आएगा? lone pair. n/2 2 minus 2 करने से 0 होता है. Got it? कि पहले हमने देखा सेंट्रल एटम बेरिडियम है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, प्लस सराउंडिंग एटम 2 होता है, तो ऐड सराउंडिंग एटम्स अदर एटम्स n/2 मिलेगा, ऐसे 2 मिल गया. जितने एटम होंगे सराउंडिंग उतना होता है बॉन्ड पेयर. डिफरेंस आएगा इस दोनों का लोन पेयर. तो यहाँ तो 0 लोन पेयर है. तो देन वी ड्रॉ द शेप फॉर 2 bonds only. What geometry is possible in which the 2 bond have maximum bond angle between them? क्या लगता है? They have opposite sides or the bond angle should be in them 180 degree. The shape is called linear. When we have only 2 bonds, then the 2 bonds should be having in them, means when we have 2 bonds, so in this arrangement only, when the bond angle is 180 degree, the 2 bonds have maximum distance between them. When 2 bonds have maximum distance, they have least repulsions. तो होता क्या है? Around central atom, we try to place the lone pair and bond pair in that manner in which they have least repulsions, and to having them least repulsions, they should have bond angle maximum possible. तो कितना आएगा bond angle maximum possible for 2 bonds? 180 degree angle. तो यहाँ पे लिखेंगे टेबल में 2 2 0. Expected shape is same as linear shape, means that is actual shape because जब lone pair नहीं होता है तब सेम आता है. Bond angle is 180 degree. एग्जाम्पल दिया है BeCl2 BeF2. मतलब आपका शेप इस टाइप का होगा. मतलब ये हमारा दिया है येलो एटम सेंट्रल एटम है. अराउंड येलो एटम वी हैव 2 एटम अरेंजमेंट. केवल एक ही शेप ऐसा होगा जिसमें क्या होगा? दे हैव बॉन्ड एंगल बिटवीन देम मैक्सिमम. और बॉन्ड एंगल कितना होगा इस केस में? 180 डिग्री. शेप इज लीनियर. येलो एटम सेंट्रल एटम है बेरिलियम का. ये होगा सराउंडिंग एटम क्लोरीन के. हाँ. How did we know that bond pair is 2? अरे यार n/2 निकाला. Yes sir. कितना एटम सराउंडिंग एटम होता है? नंबर ऑफ अदर एटम इज बॉन्ड पेयर्स. Okay sir. आई लिखा ना पिछले पेज में लिखा था हमने, जो इसके पहले में लिखा था बोर्ड के ऊपर, वहां पे लिखा था ना n/2. आपका 2 आता है तो n/2 कितना होता है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम. नंबर ऑफ अदर एटम विल बी सेम एज बॉन्ड पेयर्स. डिफरेंस आएगा दोनों का, दैट इज लोन पेयर. तो यहाँ पे तो जितना एटम n/2 उतना ही बॉन्ड पेयर हुआ, तो 0 लोन पेयर हुआ इस केस में. कंप्लीट हो गया. इन टेबल डोंट राइट एनीथिंग एक्स्ट्रा. टेबल में केवल लिखोगे रिजल्ट्स और कुछ नहीं लिखोगे. टेबल बाकी जो ड्राइंग का पर्पस है ना, आपका जो पेज बचा रह गया था उसको यूज कर लीजिए. पेज जो रिमेनिंग पेज था, या वी कैन यूज नेक्स्ट पेज आल्सो, बट इन टेबल राइट ओनली रिजल्ट्स. जितना मैं लिखता हूँ टेबल में उतना लिखेंगे टेबल के अंदर आप लोग. कंप्लीट हुआ कि नहीं अभी तक? Yes sir. ओके. अगला आएगा आपका BeCl3 molecule. Can you tell me BeCl3 molecule? What is n/2 value? Which atom to be taken central atom here?
so D. बोरॉन होगा, तो व्हेन बोरॉन हैव आउटर मोस्ट शेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? बोरॉन में क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, 13 ग्रुप एलिमेंट है, 13 ग्रुप मींस 3 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, 1s इसमें होगा 1s2 2s2 2p1, तो 2p1 मींस ये आपका होगा वैलेंस शेल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 एटम क्लोरीन, देयर अदर एटम्स, क्लोरीन इज 3, तो व्हाट इज n/2 वैल्यू 3 हो जाएगा। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स? 3 होगा बिकॉज़ 3 एटम क्लोरीन है, तो लोन पेयर कितना आपका जाएगा, इसमें 0 होगा बिकॉज़ विद 3 एटम सराउंडिंग एटम, तो 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स, डिफरेंस आएगा लोन पेयर, तो 0 लोन पेयर होगा इसमें। नाउ व्हेन वी हैव 3 bonds they should have how much bond angle between them to have least repulsions? They should have bond angle between them 120 degree. The shape taken here is called as, all the atoms are in same plane, the shape will be called as trigonal planar shape. All angles will be equal, यहाँ पे 3 3 0, शेप का नाम, ज्योमेट्री और शेप सेम होता है, अगर लॉन्ग पेयर नहीं होगा तो ट्रायगोनल प्लेनर, यहाँ भी सेम ट्रायगोनल प्लेनर, प्लेनर का मीनिंग होता है ऑल द एटम्स आर इन सेम प्लेन, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। एग्जांपल आपको दिया BF3 BCl3 टाइप मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं शेप लिखता है ऐसे करके, ऑल द एटम आर इन सेम प्लेन, जब आपका एक दिया है सेंट्रल एटम होगा ये वाला, और 3 एटम सराउंडिंग एटम है, ऑल द एटम आर इन सेम प्लेन, मींस ऑल द एटम आर इन सेम प्लेन, तो प्लेन सेम होता है, नाम होता है प्लेनर, व्हेन ऑल द एटम आर इन सेम प्लेन शेप इज कॉल्ड प्लेनर शेप। और क्या होता है इसमें, ट्रायंगुलर मींस अगर इफ यू जॉइन ऑल द कॉर्नर टू कॉर्नर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, तो शेप क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, वी विल गेट ट्रायंगल शेप, सेंटर में बोरॉन रखा है, 3 एटम क्लोरीन हुआ 3 कॉर्नर पे ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो शेप का नाम होता है ट्रायंगुलर प्लेनर। ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर आइडेंटिकल 120 डिग्री। गॉट इट? लिख दिया पूरा, आगे चले। Now next example taken here is SnCl2. Can you tell for SnCl2 what is n/2 value? देखो यहाँ पे क्या 10 आता है, तो यहाँ पे ध्यान रखो ग्रुप का आपको एलिमेंट याद रखना पड़ेंगे। 10 कहाँ पे आता है, इन ग्रुप 14 एलिमेंट्स था ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इन सेम ग्रुप एलिमेंट, इन सेम ग्रुप द एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 में कितना आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ग्रुप 14 एलिमेंट आपका आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इसका मीनिंग क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, all them have 4 electron in valence shell, तो कितना आएगा इसमें n/2 का वैल्यू, 10 have 4 electrons in valence shell plus 2 atom chlorine by 2 कर दिया 3 हो जाएगा। now how many bond pairs, जितना atom chlorine है उतना होगा bond pairs, and now they have how many lone pair, 3 minus 2 1 lone pair। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपको लिखा दे रहा हूँ, उसको लिख लीजिए और थोड़ा लिख लीजिए। आप लोग लिखते रहो, स्लो लिखते हो, इसको इतना लिख लो पहले एक बार। कंप्लीट इतना हुआ, अब मुझसे हर चीज लिखा बोर्ड पे, हर ईच एंड एवरी सेंटेंस, ईच एंड एवरी वर्ड, तो स्पीड तो कम हो जाएगा ना बहुत लिखने का, फिर मेरा कम तो नहीं है स्पीड, फिर भी यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ, उसको लिख लीजिए पॉइंट्स को। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पॉइंट को, आप लोग तैयार हो। अब टेबल को क्वेश्चन टेस्ट में टेबल चलता रहेगा, मैं टेबल को थोड़ा सा स्पेस खाली कर ले रहा हूँ लिखने के लिए। कुछ पॉइंट दिखा रहा हूँ, उसको लिख लीजिए। यहाँ पे पॉइंट क्या होता है, पहला पॉइंट लिखते हैं, इफ सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, देन ज्योमेट्री
ज्योमेट्री मीन्स द शेप एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल शेप आर सेम। अगर लॉन पे नहीं है तो क्या है, देखो दोनों केस में जो हमारा ज्योमेट्री था वही शेप होता है। अगर आता है इफ सेंट्रल एटम हैज वन और मोर लोन पेयर, देन फर्स्ट ड्रॉ ज्योमेट्री क्या होता है, n/2 सेम होता है, ज्योमेट्री सेम होता है एज पर n/2 वैल्यू। फर्स्ट ड्रॉ ज्योमेट्री n/2 सेम मीन्स सेम ज्योमेट्री। एंड देन place bond pair and lone pair in this geometry. Lone pairs for shape we only take bond pairs, but lone pair affect or decrease the bond angles, क्यों करते हैं डिक्रीज है? इसका रीजन क्या होता है कि लोन पेयर क्या होता है, ऑक्यूपाई मोर स्पेस अराउंड सेंट्रल एटम, सिंस लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस ऑन सेंट्रल एटम, तो इफ वी हैव लोन पेयर दे डिक्रीज द बॉन्ड एंगल्स। क्या लिखा है, सेंट्रल एटम हैव सेम एंड नो लोन पेयर देन ज्योमेट्री एंड शेप विल बी सेम। अगला पॉइंट क्या होता है, सेंट्रल एटम में वन और मोर लोन पेयर, देन फर्स्ट ड्रॉ ज्योमेट्री एज पर n/2 वैल्यू, n/2 सेम होता है, ज्योमेट्री सेम होता है, एंड देन प्लेस बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। फॉर शेप वी ओनली टेक बॉन्ड पेयर्स, शेप के अंदर कोई रोल नहीं है लोन पेयर का, बट क्या होता है लोन पेयर दे डिक्रीज द बॉन्ड एंगल्स और दे अफेक्ट बॉन्ड एंगल्स। क्यों, बिकॉज लोन पेयर विल कॉज मोर रिपल्सन देन द बॉन्ड पेयर्स। तो यहाँ पर क्या इस केस में हमारा n/2 वैल्यू 3 था, n/2 3 है, तो 3 में क्या आता है ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर, बिकॉज देन दे हैव लीस्ट रिपल्सन्स इन दिस केस। बट यहाँ पर क्या एक लोन पेयर है तो मेक वन लोन पेयर और बाकी दो होंगे बॉन्ड पेयर्स। तो शेप को क्या बोलेंगे यहाँ पे, एंगल आपको मींस द शेप इज कॉल्ड एज एंगुलर शेप। शेप में क्या होता है, डोंट काउंट दिस लोन पेयर, तो n/2 3 2 1 ज्योमेट्री से मिलते हैं, बट शेप क्या होगा एंगुलर। इसमें एंगल कितना होता है, लेस देन 120 डिग्री। रीजन क्या होता है एंगल लेस होने का, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है मोर रिपल्सन, so this lone pair push the bond to come closer, so bond angle become less than here 120 degree। आपका देखो ना पहला जो एग्जांपल था ये था हमारा BF3 मॉलिक्यूल, तो इसमें हम ज्योमेट्री से ड्रॉ करते हैं, बट एक आगे लोन पेयर, एक चला गया लोन पेयर। अब क्या है, ये आपका शेप बचता है, तो शेप में ये लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं, बट लोन पेयर होगा तो शेप क्या होगा, शेप जो रिमेनिंग है से क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एंगुलर शेप और बेंड शेप है ना। तो एंगुलर शेप बोलते हैं इसको है, बिकॉज एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री, इवन लेस देन 120 डिग्री। गॉट इट? Yes, sir. तो लोन पेयर अगर होंगे तो क्या करते हैं, दे अफेक्ट द बॉन्ड एंगल्स, दे इनफैक्ट डिक्रीज द बॉन्ड एंगल्स। टेबल अभी कंटिन्यू होगा, जगह मैंने थोड़ा खाली की थी इसको लिखने के लिए। कंप्लीट हो गया? नहीं सर।
is essential too, right? हाँ This is essential too, right? essential to So for example, you have written essential 4. सॉरी वो लिखा ना 2 3 देख के 4 लिख गया हूँ यहाँ पे ध्यान तो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है था मेक इट करेक्शन एसेंशियल 2 है